In the last class, what we talked about were the effects of different water potentials on animal cells. Take bar, just a quick revision on water potential or on osmosis, that whenever we talk about osmosis, what is osmosis? The movement of water molecules from a region of high water potential towards a region of low water potential through a partially permeable membrane. अच्छा, water potential क्या होता है? It's a ratio between solute and solvent particles. जिस solution के अंदर भी water molecules solute से ज्यादा हो जाएंगे, water potential high हो जाएगा. जिस solution के अंदर भी water molecules solute से कम हो गए या compared to water molecules solute ज्यादा हो गया, water potential low हो जाएगा. It's this easy. Uh, फिर हम लोगों ने बात करी थी. Then we talked about how osmosis occurred. Then we talked about the effects of water potential in different animal cells. हमने कहा था कि भाई animal cells, whenever put into isotonic solutions, the movement of water would still be occurring, but what's going to happen is जितना water molecule cell के अंदर जा रहा होगा from the isotonic solution, उतने ही water molecule बाहर जा रहा होगा. Then we talked about what's going to happen if I'm going to put the animal cells in distilled water or hypotonic solution. What's going to happen is the water molecules are going to move in from region of higher water potential, that is the hypotonic solution, into the red blood cells where the cytoplasm has a comparatively low water potential. Comparison ho gaya, right? This is going to cause the animal cells to swell up, and ultimately what's going to happen to them? They're going to burst, right? And similarly, when we put animal cells in hypertonic solutions, those solutions that have a lower water potential, what's going to happen is that since the external solution has a lower water potential, the cytoplasm has a higher water potential, water molecules are going to move out, causing the cells to shrink and become spiky. This spiky appearance of the animal cells as the loose water in hypertonic mediums, uh, is called as crenation. And this how crenation looks like. ठीक है? Up now that we know about the animal cells, let's talk about the plant cells. What we're going to do is, so we're going to see the effects of different water potentials on what? On plant cells. ठीक है? अब देखो. So what we're going to do is we're going to draw the very same three beakers. Right, so there's going to be a beaker A. This is going to be a beaker B. And again, this is going to be a beaker C. And we're going to fill these, let's say, beakers with the very same. In beaker one, we are going to put an isotonic solution. In beaker two, we are going to put a hypotonic solution, preferably distilled water. DW is distilled water. All right. And in beaker C, what we are going to put is going to be a hypertonic solution. Right. So let's put our solutions right here. ठीक है. अच्छा, अब देखो होता क्या है हमारे पास, एनिमल सेल्स के पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन थी. प्लांट सेल्स के पास एक एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन भी होती है, विच द सेल वॉल. राइट. अब अगर हम लोग देखें, सो व्हाट डू वी सी इज दैट अ टिपिकल प्लांट सेल वुड लुक समथिंग लाइक दिस. उसके जो कॉर्नर्स होंगे ना, वो हमारे पास कैसे होंगे? दे आर गोइंग टू बी पॉइंटी, दे आर गोइंग टू बी अ बिट पॉइंटी. राइट. अगर हम इसके अंदर, सो दिस द सेल वॉल. Cell wall can stretch to a particular point since it's elastic. लेकिन Aisha, this is a diffusion osmosis and active transport. अच्छा, क्योंकि सेल वॉल थोड़ी बहुत तो इलास्टिक होती है, वो स्ट्रेच तो कर सकती है, लेकिन अनलाइक सेल मेम्ब्रेन, द सेल वॉल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द फ्लूइड इनसाइड ऑफ इट फॉर इट शेप. कोई जरूरत नहीं है. हाँ, देखो अगर हम लोग कहें तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि भाई वी कैन compare the very same way as we compared the animal cells with a balloon right here. The very same way we can compare the plant cells with the cylinder. अगर हम लोग एक सिलेंडर बनाए, let's draw a cylinder for ourselves first. तो
यूजुअली हम लोग क्या देखते हैं कि वेन एवर द सिलेंडर it's getting filled up with whatever gas, let's say air, तो गैस इसके अंदर आ रही होगी ना, the very same way as the balloon, the gas is also going to apply pressure on the walls of the cylinder. क्योंकि सिलेंडर इलास्टिक नहीं होता, ये स्ट्रेच भी नहीं करेगा। लेकिन अगर इफ यू गाइस हैव would have seen somebody filling up a cylinder, तो वो when the cylinder fills up completely, they only would stop the cylinder from filling up completely. They can do it a bit later. वो थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं। मतलब like the very same way as we're putting fuels in, अगर हम लोग कभी गाड़ी में फ्यूल डलवा रहे होते हैं, so there's a particular knob, तो उस knob को प्रेस करते रहोगे, because the liquid is going in, the liquid can flow out, so they have to release that knob so that more let's say liquid does not go inside the fuel tank. सिलेंडर के साथ ऐसा नहीं होता। होता क्या है, जितने प्रेशर से बाहर से अगर जो भी गैस आ रही है ना, अगर अंदर भी उतना प्रेशर हो गया, अगर अंदर भी उतना प्रेशर हो गया, सो अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट the pressure at which the gas is moving inside the cylinder, if that pressure becomes equals to the pressure on let's say accumulated on the inside of the gas or inside of the cylinder, तो और गैस नहीं आ पाएगा। अगेन इसको दोबारा सुनो, अगर सिलेंडर के अंदर भी उतना ही प्रेशर है जितने प्रेशर से बाहर से गैस आ रही है, तो और गैस नहीं आ पाएगी। इट्स वेरी सिंपल, राइट? सो लेट्स से two of us are standing across a door. अगर मैं एक डायरेक्शन के अंदर +5 न्यूटन की फोर्स लगाऊं, एंड यू अप्लाई द वेरी सेम फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी? 0 न्यूटन। वो दरवाजा मूव ही नहीं करेगा। प्रेशर्स के अंदर भी यही होता है। ठीक है, ये छोटी सी बात याद रखिएगा। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई प्लांट सेल्स डू नॉट बर्स्ट। ठीक है, विल सी दैट। अब देखो होता क्या है। अब ये तो हमारे पास सेल वॉल आ गई, राइट? इसके अंदर ही हमारे पास क्या होगी? एक सेल मेम्ब्रेन होगा, और we are also going to have a large central vacuum. ठीक है? Now what's going to happen is, in an isotonic solution, जितना वाटर मॉलिक्यूल इस साइटोप्लाज्म के अंदर जा रहा है, उतना ही वाटर मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म के बाहर जाएगा। मूवमेंट अगेन वाटर मॉलिक्यूल्स की हो रही होगी, but the movement is going to be equal, because again both of these solutions have the same water potential, the external solution and the cytoplasm। ठीक है? अच्छा, लेकिन अगर मैं इसी वाले सेल को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखूं, फिर क्या होगा? एज वी टोल्ड यू, द सेल वॉल इज प्रीटी इलास्टिक, क्योंकि एक्सटर्नल सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल है वो ज्यादा है। Water molecules will move into the plant cell, and as they're moving into the plant cell is going to swell up। इतना तो इलास्टिक है। ठीक है, तो अब मैं क्या देखूंगा? It's not, since it's swelling up, it's not going to be pointy anymore, right? It's not going to be pointy anymore. It's going to become a bit spherical. It's going to swell up like this। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखो यहाँ हमने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस दिखाया हुआ है ना, दिस सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंस हियर। लेकिन मैं एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या देखूंगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होगी ना, वो सेल वॉल से बिल्कुल चिपक जाएगी, राइट? लाइक दिस। मेक सेंस? एंड ऑब्वियसली द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज ऑल्सो गोइंग टू स्वेल अप। अब हम क्या देखते हैं, दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन। लेकिन अभी बर्स्ट क्यों नहीं हो रहा? देयर आर टू रीजंस फॉर इट। पहला रीजन क्या है कि द सेल वॉल कैन बेयर द प्रेशर। ठीक है। दूसरा रीजन क्या है कि देखो, द वेरी सेम विद सिलेंडर, द वेरी सेम विद अ बलून, जब इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे होंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली अप्लाइंग प्रेशर ऑन द एजेस ताकि ये स्वेल अप, राइट? सो व्हाट्स गोना हैपन भाई, जो मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो अंदर से इसकी वॉल्स के ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहे हैं।
लाइक दिस, ठीक है। व्हेन द प्रेशर, इसको गौर से सुनिएगा, व्हेन द प्रेशर applied by the water molecules from the inside becomes equal to the pressure of the water molecules trying to get in from the outside। देखो, जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर वाले सोल्यूशन से प्लांट सेल के अंदर आ रहे हैं तो दे वुड बी मूविंग एट सम स्पीड, दे वुड बी अप्लाइंग सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर। जब बाहर वाले वाटर मॉलिक्यूल्स जो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं उनका प्रेशर, और वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो ऑलरेडी अंदर हैं उनका प्रेशर इक्वल हो जाएगा, नो मोर वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी एबल टू मूव ऑन। डज दिस मेक सेंस? इस प्रेशर को हम लोग कौन सा वाला प्रेशर कहते हैं? ट्रिगर प्रेशर। ये वाली बात सबके समझ में आई? यस। ऑलराइट, ओके, गुड इनफ। सो भाई इससे हम लोग क्या कहते हैं, इस हफ्ते हम लोगों ने कहा कि भाई प्लांट सेल्स इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, दे स्वेल अप एंड दे बिकम व्हाट, दे बिकम टर्जिड। ठीक है। अब मुझे एक दूसरी, सो आई एम गोइंग टू टेल यू कि भाई ट्रिगर प्रेशर क्या होता है। सो we'll write about it right here। Before we write this trigger pressure की definition, मुझे एक बात ही बताओ, ये ट्रिगर प्रेशर कौन सा वाला है? वो जो बाहर से लग रहा है या वो जो अंदर से लग रहा है? Is the trigger pressure coming from the inside or is the trigger pressure coming from the outside? हाँ जी। So where is this trigger pressure coming from? Inside। Very good, Muniza, very good, very good बच्चे। ठीक है। So how do we define this trigger pressure? We say trigger pressure is the pressure applied by water molecules from where? From the inside। क्यों? To prevent, so this, let me write it more clearly, to prevent any further entry of water molecules। ठीक है, कि भाई ये वो प्रेशर है जो अंदर से क्रिएट हो रहा है ताकि और कोई वाटर मॉलिक्यूल अंदर, बाहर से अंदर की तरफ नहीं आ सके। Did everyone get this? ये वाली बात सबको समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई मसला मेरे बच्चों? All right. Now, so this was the appearance of the plant cell in a कौन सा वाला solution, in a hypertonic solution। अब हम लोग बात करते हैं hypertonic solution पे। अब लेट्स से भाई मेरे पास एक एरोसॉल स्प्रे है, अगर मैं उससे सारी हवा बाहर निकाल दूं या whatever the aerosol that was present inside of it, if it empties up, will the can change its shape? नहीं। तो इसी तरीके से हमारे पास जो सेल वॉल होती है ना, वो भी अपना शेप चेंज नहीं करती है। राइट। So this cell wall is going to be the same as it was before। ठीक है, so let me just remove the extras। ओके। लेकिन हमें ये पता है कि भाई हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, that is basically dependent on the water molecules for its shape, right? So what's gonna happen is इस सेल मेम्ब्रेन होगा ना, सिंस क्यों, अच्छा ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि भाई ये जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है इसका वाटर पोटेंशियल कम है। दिस राइट हियर इज अ सिंबल फॉर वाटर पोटेंशियल। ठीक है। सो व्हाट्स गोना हैपन, वाटर मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू मूव आउट, कॉजिंग द वेरी सेम एनिमल सेल्स के अंदर हमारे पास सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, यहाँ भी हमारे पास जो प्लांट सेल मेम्ब्रेन्स होंगी वो अंदर की तरफ श्रिंक हो जाएंगी। ठीक है। वाई?
because they're losing water to the external solution, this external solution right here. It's a highly concentrated solution. And the large central vacuole is also going to shrink. ठीक है? अब प्लांट सेल्स थोड़ा बहुत तो श्रिंक होगा, एक अंदर की तरफ प्रेशर आ रहा है, राइट? सो इट गेटिंग स्क्वीज्ड फ्रॉम द इनसाइड. तो हम लोग कहते हैं इन द वेरी सेम वे एज in hypertonic solutions, plant cells shrink and they become what? Plasmolyzed. And they become what? They become plasmolyzed. All right. So हम लोगों ने कहा कि भाई प्लांट सेल्स ग्रेनेट नहीं होते, बट यस दे डू बिकम प्लाज्मोलाइज्ड. ठीक है. अच्छा, अब दूसरी बात ये आती है, फोकस. What do we mean by the word plasmolysis? अच्छा, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर, then if we are talking about plasmolysis, then what do you mean by the word flaccid? देखो होता क्या है, सेल्स प्लाज्मोलाइज होते हैं, टिश्यूज फ्लैसिड होता है, और जो प्लांट होता है वो मुरझा जाता है, वो विल्ट हो जाता है. तो ये तीन चीजें याद रखिएगा. सेल्स get plasmolized, tissues become flaccid, and what happens to the whole plant? It becomes what we call as it wilts. ठीक है. So what is plasmolysis? हमने कहा भाई plasmolysis is the movement of cell membrane away from the cell wall as plant cells lose water to a कैसा medium? To a hypertonic medium, right? Acha ji. So let's have a look at a picture. I had a picture of it. Mm, it was somewhere. It should be right here. Mm, right here. Here we are. Right. So let's just zoom this up and let's have a look at this. ठीक है. देखो, मेरे पास एक नॉर्मल प्लांट सेल वॉल जो है वो कुछ ऐसी है. लेकिन अगर मैं इसको यहाँ देखूं, तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ कि जितना भी सेल मेम्ब्रेन है ना, वो बिल्कुल बीच के अंदर आ गया है. दिस थिंग राइट इन द मिडल इज द साइटोप्लाज्म, राइट? तो अगर हम लोग बाकी सेल्स भी देखें, तो भाई ये सेल दिस वाज सपोज टू बी दिस बिग, लेकिन इसकी सेल मेम्ब्रेन मूव कर गई अवे. दिस सेल वाज सपोज टू बी दिस बिग, लेकिन इसका सारा साइटोप्लाज्म अलोंग विद द सेल मेम्ब्रेन इतना बीच में आ गया, राइट? सो यू कैन एक्चुअली ऑब्जर्व द गैप्स. ठीक है. लेकिन अगर हम लोग यही वाला प्लांट सेल देखें एक टर्जिड स्टेट के अंदर, तो इट हैज बिकम फ्लैटेड, वो खिंच गया है. इट्स नॉट पॉइंटी एनी मोर, रादर इट्स स्मूथ लाइक दिस, राइट? और अगर हम लोग देखें, तो जहां जहां हमारे पास सेल वॉल्स आ रही है लाइक दिस, साइटोप्लाज्म उतना ही भरा हुआ है. द साइटोप्लाज्म इज कवरिंग मेजरली ऑल ऑफ द सेल वॉल, राइट? सो this is a plant cell in a state of, let me call as, let me write it down. So this is the turgid plant cell, and this is a plasmolyzed plant cell. यहाँ तक बात समझ में आ रही है? We can be better. Okay. Yes, this flaccid thing is a part of our syllabus. मैं दिखाता हूँ कैसे. दो तीन तो टर्म्स हैं, क्रीनेशन, प्लाज्मोलिसिस और ट्रिगर प्रेशर. हाइट तो नहीं, हाइट तो वैसी ही रहेगी. हाँ, अगर हम लोग उसकी विड्थ का है ना कि भाई सेल और चपटा हो गया, लाइक वो खिंचाव आ गया उसके अंदर, वी कैन से दैट. ठीक है. प्लाज्मोलाइज सेल होता है, प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस होता है मेरा बच्चा. द सेल्स बिकम प्लाज्मोलाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस. ठीक है. वेलकम बेटे. अच्छा जी. नाउ, ओके. सो दिस वाज इट. ठीक है. अच्छा जी.
So we discussed the effects of different water potentials on the animal cells, on the plant cells, and now let's talk about the effects of different water potentials on what? On plant tissues. Okay. So I don't think we need this cylinder anymore. Let me just do this. Okay. So that we can just enlarge this image a bit and put it right here. Better. Okay. अब हम लोग बात करते हैं effects of different plant cells on what? On plant tissues. ठीक है. अच्छा होता हमारे पास क्या है ना. Plant tissue क्या होता है? When tissue, what are tissues? Tissues are made up of many different cells joined up together, right? तो अब अगर मैं कहूँ कि let's say मेरे पास ना I have a potato का tissue. Let's say I have a French fry. French fry is a potato tissue, right? A raw French fry. तो let's say I took a piece of potato tissue और इस potato tissue का जो length था वो 3 centimeters था. How do we convert centimeters into millimeters? We multiplied by 10. तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये एक 3 सेंटीमीटर्स या फिर 30 मिलीमीटर्स का एक पोटेटो टिश्यू है. ठीक है. अब अगेन इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे, बहुत सारे पोटेटो सेल्स होंगे, राइट? एंड वी नो पोटेटो अ प्लांट. अब होता हमारे पास क्या है. अब आई कैन पुट दिस प्लांट टिश्यू इनटू डिफरेंट सॉल्यूशंस, राइट? हाई आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक. अगर मैं इस प्लांट टिश्यू को एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखता हूं, what will happen to its mass or length? Nothing. Why? Is because जितना water molecule इसके अंदर जा रहा होगा उतना ही water molecule बाहर आ रहा होगा. So हम लोग कह देंगे कि भाई there is going to be no change in either length या फिर mass. ठीक है. लेकिन अगर मैं इसी प्लांट टिश्यू को, इसी पूरे टिश्यू को एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर रखूं. हाइपोटोनिक सोल्यूशन कौन से होते हैं? जिनका वाटर पोटेंशियल ज्यादा होता है, राइट? ओ आई फॉरगॉट टू मेंशन वन थिंग हियर. मुझे याद दिलाना, मुझे यहाँ एक चीज एक्सप्लेन करनी है. खैर पहले हम लोग ये देख लेते हैं. व्हाट्स गोना हैपन इज, क्योंकि इस वाले सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, वाटर मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू मूव इन. एंड व्हाट्स गोना हैपन टू द मास और द लेंथ? हम कहेंगे देयर इज गोइंग टू बी एन इंक्रीज इन लेंथ या फिर mass, because again all the cells they have elongated, right? They have become turgid. Similarly, अगर मैं इस सोल्यूशन को, इस पूरे टिश्यू को सॉरी, एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखूं, वाटर मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू मूव आउट. अब क्योंकि हर प्लांट सेल श्रिंक होगा और वो अपना वाटर कंटेंट लूज भी कर रहा है, तो हमारे पास जो मास होगा वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा. देयर इज गोइंग टू बी a decrease in either length या फिर मास. तो हम ये कह सकते हैं इधर हमारे पास जो if we're talking about लेंथ 30 मिलीमीटर ही रहेगी. हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के अंदर द लेंथ इज गोइंग टू बी मोर देन 30 मिलीमीटर्स, डिपेंडिंग कि कितना हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है. ठीक है. और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर द लेंथ विल बी लेस देन 30 मिलीमीटर. ठीक है जी. यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई मसला नहीं? अच्छा, नाउ दैट वी नो दिस, लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट. हमने कहा कि व्हाट वील डू इज वील टेक डिफरेंट बीकर्स. हम लोगों ने अलग अलग बीकर्स लिए. और सबके अंदर हमने वही वाला 30 मिलीमीटर वाला पोटेटो टिश्यू रख दिया. ठीक है. लेकिन the solutions that we covered this potato tissue with, they had different concentrations. Now please remember I'm talking about concentrations.
कंसेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है हमारे पास? मोल पर डीएमक्यू। मैंने पहले वाले सोल्यूशन के अंदर डिस्टिल्ड वाटर डाला, उसमें कोई भी सॉल्यूट नहीं होता, तो उसकी कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 0.0। जैसे दूसरे वाले में 0.2 था, तीसरे वाले में 0.4 था। तो मैं इसी तरीके से मैंने क्या करा, इन सब की मैं कंसेंट्रेशंस विद एवरी बीकर मैं क्या कर रहा हूँ? इंक्रीज कर रहा हूँ। किसकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूँ? वो फ्लूइड, वो सोल्यूशन जो बाहर की तरफ। यहां तक बात समझ में आ रही है बच्चों? आर वी ऑल गेटिंग दिस? कि व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? अच्छा, I left all of these tissues in a beaker for let's say 30 minutes. 30 मिनट बाद जब मैंने इन सारे पोटेटो टिश्यूज को या प्लांट टिश्यूज को निकाला, so I looked at their lengths. Initial length that we kept was 30 millimeters, right? अब हर किसी की फाइनल लेंथ क्या है? लेंथ कम हो रही है या डिक्रीज हो रही है? ठीक है, वॉट एवर हर बीकर के हिसाब से जो भी हमारे पास फाइनल लेंथ आ रही थी, मैंने उसको ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। अब मेरा ग्राफ कैसे बना इसको देखिएगा। ऑन द वाई एक्सिस मैंने क्या रखा? मैंने रखा, आई प्लॉटेड द चेंज इन लेंथ। ठीक है। ऑन द एक्स एक्सिस मैंने क्या प्लॉट करा? कंसेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। इसके यूनिट्स क्या आ जाएंगे? मोल पर डीएम क्यूब। बहुत पीछे हो गया। और चेंज इन लेंथ किसके अंदर आई? मिलीमीटर के अंदर। Okay, did it increase by 1? Did it increase by 2? Did it increase by 3 millimeters? Or it did not increase at all? Did the length decrease by 1 millimeter? Decrease by 2 millimeters? Decrease by 3 millimeters? Right? हम नेगेटिव में क्यों जा रहे हैं कि देखो, हम लोग तो यहाँ ये भी देख रहे हैं कि या तो इंक्रीज इन लेंथ हो सकता है या फिर डिक्रीज इन लेंथ हो सकता है या फिर देयर इज गोइंग टू बी नो चेंज इन लेंथ, राइट? सो अगर नो चेंज इन लेंथ हमारे पास होगा, सो व्हाट्स गोना हैपन इज कि भाई हमारे पास तो लेंथ तो जीरो आ रही होगी। जितना इंक्रीज हो रहा होगा वो इस वाले एरिया के अंदर होगा, जितना डिक्रीज हो रहा होगा वो इस वाले एरिया के अंदर होगा, राइट? हम लोग सोल्यूशन से पुट कर लेते हैं। जीरो वाला सोल्यूशन इधर आ जाएगा, 0.2 वाला सोल्यूशन इधर, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0। Now, when I plotted my graph came out to be something like this. Right. अब let's interpret this graph first. मैंने कहा, जब मैंने इसको 0 मोल पर डीएम क्यूब वाले सोल्यूशन के ऊपर रखा, सबसे ज्यादा चेंज इन लेंथ आया। कितना आया मेरे पास? +3। तो इसकी इनिशियल लेंथ कितनी थी मेरे बच्चों? 30 मिलीमीटर। अगर उसमें +3 मिलीमीटर का चेंज आया, तो इसकी फाइनल लेंथ कितनी हो गई बच्चा लोग? 33। आर वी गेटिंग दिस? यहां तक बात समझ में आ रही है? ओके, गुड इनफ। सिमिलरली थ्री कैसे? दिस हम लोग रैंडम वो कर रहे हैं ना भाई, दिस इज द मैक्सिमम इंक्रीज इन मास दैट वी गॉट। ठीक है, हम ग्राफ से प्लॉट कर रहे हैं। सिमिलरली लाइबस को देखो, 0.2 वाले सोल्यूशन के अंदर इसका चेंज इन लेंथ कितना आ रहा है मेरा बच्चा? 2.8 लेट्स से। जब तक बात समझ में आई लाइबा? तो 0.2 वाले सोल्यूशन के अंदर चेंज इन लेंथ कितना आया? 2.8। तो 2.8 को ऐड करो 30 के अंदर, फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी? सॉरी, 32.8। Are you guys following me till here?
ओके, गुड इनफ, सही है। सिमिलरली, 0.4 वाले सोल्यूशन के अंदर चेंज इन लेंथ 2 आ रही है, तो अब मेरे पास फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी? 32। ऑलराइट, ओके, गुड इनफ, गुड इनफ। अच्छा, 0.6 के ऊपर मेरे पास जो चेंज इन लेंथ आई वो -1 आई है। तो 30 इनिशियल लेंथ -1 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 29। सिमिलरली, अगर हम लोग 0.8 पे देखें तो भाई चेंज इन लेंथ -2.2 आ रहा है, तो 30 -2.2 कितना हो जाएगा? सो 27.8 हो गई, और 1.0 के ऊपर तकरीबन 2 आ रहा है, तो भाई लेंथ हमारे पास कितनी? नो, इट शुड बी 28.8, राइट? सॉरी, -3 आ रहा है इसके ऊपर, आई थिंक 1.0 के ऊपर। नो, इट्स -3.2, 3.2 है ना? 30 -3.2 कितना हो जाएगा? इट शुड बी 27.8 राइट हियर। ठीक है, खैर खैर खैर। दो चीजें देखिए बिफोर वी गो फर्दर, so we don't need this anymore. What we are basically doing is we are moving from a hypotonic medium towards a hypertonic medium. देखो, इस रीजन के अंदर हमारे पास इंक्रीज इन लेंथ आ रहा है ना, तभी हम लोग प्लांट टिश्यू को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो हमारे पास लेंथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मेक सेंस? इस रीजन के अंदर ऑल द वे फ्रॉम हियर टिल हियर हमारे पास कैसा वाला मीडियम शुरू हो गया? हाइपरटोनिक है भाई। जितना हमारे पास कंसेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, चेंज इन लेंथ भी इंक्रीज होते जा रहा है, डिक्रीज इन लेंथ भी इंक्रीज होते जा रहा है। मेक सेंस? ये वाली बात समझ में आई सबको? डू यू ऑल गेट दिस? ऑल राइट, ऑल राइट। अब बच्चों, सवाल ये आता है मेरा, another question that I want to ask you guys is, looking at the graph right here, which concentration of the solution is isotonic to plant tissue? Come on, guys, focus. हाँ जी, लाइबा। Which concentration is isotonic to the plant tissue? Guys, focus. तो अगर हम लोग यहाँ देखें, कौन सी वाली सॉल्यूशन प्लांट टिश्यू से आइसोटोनिक होगी? 5, जो पॉइंट लाइन पर है। वेरी गुड रेहान, वेरी गुड जमाल। The concentration where the change in length is zero, राइट? हम लोगों ने कहा था आइसोटोनिक सॉल्यूशन में देयर इज नो चेंज इन लेंथ। तो ये चेंज लेंथ अगर हम लोग उसको यहाँ देखें तो किस पे आ रहा है? 0.5 के ऊपर। तो भाई हम लोगों ने कह दिया 0.5 मोल पर डीएम क्यूब। ये वाली बात सबको समझ में आ रही है? Does everyone get this? All right. किसी को कोई मसला? Anyone? Does anyone have any problems whatsoever? Okay. All right. अच्छा, अब अगर now tell me something. अब अगर मैं इंस्टेड ऑफ चेंज इन मास या लेंथ, वाई एक्सिस के ऊपर अगर मैं तुम लोगों को रेशियो दे दूं, फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई गिव यू अ रेशियो ऑफ
इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय फाइनल लेंथ। अगर हमारे पास यहाँ यूनिट्स चेंज हो जाए तो हमारा आंसर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक बात याद रखो बेटे, हमारे पास ये इनिशियल लेंथ कुछ भी हो, फॉर एग्जाम्पल इन आर केस हमारे पास कितना मिलीमीटर था, 30 मिलीमीटर था। हम कहते हैं यार मेरे पास लेट्स से एक और सोल्यूशन के अंदर एक और पोटेटो टिश्यू वो 500 मिलीमीटर था, एक और पोटेटो टिश्यू 72 मिलीमीटर था। अगर उसको मैं आइसोटोनिक सोल्यूशन में डालूंगा, ये बात समझिएगा, अगर मैं इसको एक आइसोटोनिक सोल्यूशन में डालूंगा, देर इज गोइंग टू बी नो चेंज इन लेंथ। तो हमारे पास जो फाइनल लेंथ होगी वो भी क्या हो जाएगी, वो भी सेम हो जाएगी। तो जब हम लोग इनिशियल और फाइनल लेंथ का रेशियो लेंगे, हमेशा आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर इनका रेशियो क्या आ रहा होगा, 1। हमेशा आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर का रेशियो 1 आ रहा होगा। सो अब हम क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ प्लॉट करेंगे। सो अगेन द आंसर इन आवर केस इज द सेम। ठीक है, मैंने ग्राफ ऐसा बनाया है। तो अब हम लोग जीरो को नहीं देखेंगे। हम जीरो कब देख रहे थे, जब यहाँ हमारे पास चेंज इन लेंथ लिखा हुआ था। अगर इनिशियल लेंथ और फाइनल लेंथ का रेशियो आ रहा होगा तो हम देखेंगे भाई 1 पे लाइन कौन सी वाली कंसेंट्रेशन में प्लॉट कर रही, राइट। तो ये बात याद रखिएगा। खैर वी डोंट नीड एनीथिंग यहाँ, so we'll just revert back to our original units which were, ठीक है भाई, right. So I'm glad that you guys are picking up this fast. Okay, now अब एक और चीज हमारे पास एक छोटी सी रह गई थी। चलो यहाँ बात कर रहे थे ना, let's go back to this particular point. When a plant cell it becomes plasmolized, what do we see is that कि भाई ये जो external solution है ना, let's say this was a highly concentrated solution of रूह अफ़ज़ा, ये जो solution है ये इस स्पेस के अंदर आके fill up हो गया, right. Now let me give an example. Let me show it to you एक बार और. Let's say I am showing you a plasmolized cell right here. मेरे पास एक सेल है, ये प्लाज्मोलाइज हो चुका है, ठीक है। इसका सेल मेम्ब्रेन और जो लार्ज परमानेंट सब वैक्यूल था वो भी श्रिंक हो चुका है। The solution that I exposed it to, the concentrated solution that I exposed it to, right? This solution. Now, what happened to the solution was this solution started to fill up in this space. Now, the question is, did the solution move in through osmosis or did the solution move in through diffusion? By what process did the solution move inside? हाँ जी, Salibus is osmosis, Manahil osmosis, Jamal osmosis, Amna osmosis. So everyone's going for osmosis. Zara also says osmosis. This solution moved inside through diffusion. Q, Q. Again. Q. What was the definition for osmosis? It was the movement of what? Number one, water molecules only. लेकिन मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, यहाँ तो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ तो पूरा का पूरा सोल्यूशन, सॉरी, यहाँ तो पूरा का पूरा सोल्यूशन मूव इन कर रहा है भाई, राइट। सोल्यूशन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे, सॉल्यूट्स भी होगा, नंबर वन। नंबर टू, फ्रॉम अ रीजन ऑफ व्हाट, फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लो वाटर पोटेंशियल। लेकिन अगर हम लोग इसको यहाँ देखें
तो यहाँ तो ये लो वाटर पोटेंशियल वाले सोल्यूशन से आ रहा है ना, हाइपरटोनिक सोल्यूशन था ना। दूसरी वाली कंडीशन कैंसिल आउट हो गई। तीसरी वाली कंडीशन क्या थी? थ्रू अ पार्शियली परमेबल मेम्ब्रेन। इफ यू वुड लुक एट दिस पर्टिकुलर पिक्चर, तो ये सोल्यूशन तो सिर्फ सेल वॉल को क्रॉस कर रहा है। सेल वॉल इज फुली परमिएबल। इसने सेल मेम्ब्रेन को तो क्रॉस नहीं करा इन दिस रीजन। मुझे तो कोई सोल्यूशन नहीं मिला। बात समझ में आ रही है? अब ये हमारे पास एक बहुत कॉमन पेपर का सवाल होता है, सो लेट मी शो इट टू यू। Where did our sheets go? Here we are. एक सवाल हम लोग करेंगे भी। अब let's have a look at this question. वो कह रहा है कि ये वाला जो सेल था ना, दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन, दिस पर्टिकुलर सेल, इसको गौर से देखिएगा, इसको गौर से देखिएगा। सेल इन सोल्यूशन आई। मैं देख रहा हूँ कि इसकी सेल मेम्ब्रेन इट हैज मूव्ड अवे फ्रॉम द सेल वॉल एंड इट हैज श्रंक अ बिट, राइट। तो ये हमारे पास कौन से वाले सोल्यूशन के अंदर है? ये प्लाज्मोलाइज्ड सोल्यूशन के अंदर है। अब वो कह रहा है ऑन सेल इन सोल्यूशन आई shade all the regions which would contain solution I। कि solution I आपके पास कहां कहां तक आया? तो भाई हम कह देंगे कि जितना भी सेल वॉल वाला स्पेस था ना हमारे पास, राइट हियर, इस जगह के ऊपर सोल्यूशन I आ गया हमारे पास, ठीक है। इस जगह के ऊपर हमारे पास क्या आ गया? सोल्यूशन I आ गया। अब वो कह रहा एक्सप्लेन योर आंसर। हम बता देंगे कि भाई द सोल्यूशन I was in a higher what concentration outside, it was in a lower concentration on the inside, so it moved in by the process of diffusion। इतनी सी बात। ठीक है। आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? ठीक है। सो दिस रैप्स अप आवर ऑस्मोसिस। यहाँ तक हमारा ऑस्मोसिस कंप्लीट हो गया। नाउ the next thing that we have on our list is what is a third mechanism of transport called as active transport। All right, before we talk about active transport, एक बार और explain करता हूँ कि diffusion कैसे है। Now listen to this very carefully। Since the solution, the whole of the solution is moving from its in a higher from the point where it's in a higher concentration, water potential नहीं, concentration। क्योंकि इसकी कंसेंट्रेशन यहाँ है और उसको ये एम्प्टी स्पेस मिल गया ना, तो ये सोल्यूशन डिफ्यूज कर गया। ऑस्मोसिस क्यों नहीं हो सकता? मुदस्सिर बस। ऑस्मोसिस क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर रहे, पूरा का पूरा सोल्यूशन मूव कर रहा है। ठीक है। दूसरी बात देखो, अगेन whenever things are empty, और अगर मैं इसको लिक्विड में डालूंगा तो it's going to suck up the liquid, right? We have a prime example of sponges। sponges हमारे पास उनमें hollow spaces होते हैं। वुड जो होता है, हम क्यों कहते हैं लकड़ी फूल जाती है, उसमें hollow spaces होते हैं। मैं उसको फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी पीस ऑफ वुड को, इस स्पंज को एक ग्रीन कलर के सोल्यूशन में डालूं, इट्स गोइंग टू सोक अप ऑल द सोल्यूशन। मेक सेंस? तो दिस एब्जॉर्प्शन इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। डू वी गेट दिस? हमने बेटे बात समझ में आई अब कि डिफ्यूजन क्यों है, ऑस्मोसिस क्यों नहीं है? ऑलराइट। अच्छा जी, नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स लास्ट पार्ट व्हिच इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यू वेलकम बेटे। नाउ सो अच्छा जी, अब देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है। डिफ्यूजन हमारे पास क्या था? वाज अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो, डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ऑस्मोसिस के अंदर ऑपोजिट हो रहा है, ऑस्मोसिस के अंदर वी गोइंग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि भाई ये भी लाइक डिफ्यूजन, इट्स आल्सो द मूवमेंट ऑफ व्हाट? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। कहां से कहां? फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, does osmosis, sorry, diffusion require, does diffusion require any sort of membrane? No, it does not।
ठीक है, नो इट डज नॉट। डिफ्यूजन हमारे पास डज नॉट रिक्वायर एनी मेम्ब्रेन। ठीक है, इट कैन सम एयर फ्रेशनर हियर, इट्स गोइंग टू डिफ्यूज थ्रू आउट, यहाँ तो कोई मेम्ब्रेन नहीं है। कैन इट diffusion occurs in non-living things. अगर मेरे पास एक पानी का ग्लास है, if I'm going to drop of, let's say a drop of ink, what's going to happen is it's going to spread. That's diffusion. अगर मैं उस पानी के अंदर शुगर को let's say dissolve करने की कोशिश करूंगा, the sugar is going to dissolve. That's diffusion, right? ठीक है, so that's again going to be diffusion. Active transport cannot occur outside or without a membrane. क्यों? क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट को करवाने के लिए वी रिक्वायर सम स्पेशल प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज कैरियर प्रोटीन्स। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई ये कैसे हो रहा है, थ्रू कौन से वाले प्रोटीन्स, आई एम गोइंग टू राइट देम इन रेड, थ्रू कैरियर प्रोटीन्स, राइट। अच्छा, दूसरी चीज, डज डिफ्यूजन रिक्वायर एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सेल? नो इट डज नॉट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट डज। तो हम लोगों ने कहा कि भाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई थ्रू कैरियर प्रोटीन्स यूजिंग व्हाट, एनर्जी। ठीक है, अब देखो ये जो कैरियर प्रोटीन्स होता है ना हमारे पास, दिस कैरियर प्रोटीन्स, वो डिफ्यू एग्जैक्टली, वो पानी में हल्दी डालने वाले ट्रेंड के अंदर डिफ्यूजन होता है, एग्जैक्टली, राइट। अच्छा, कम बैक हियर। अब होता क्या है, जो कैरियर प्रोटीन्स होता है ना, इसको पहले देख लो, ये कैरियर प्रोटीन्स का मैकेनिज्म, दे दे आर लाइक गेट्स, राइट। सो दे वर्क ऑन दिस फ्लिप फ्लॉप मॉडल। वो फ्लिप स्टेट में होता है, फिर वो फ्लॉप स्टेट में आ जाता है, फिर वो दोबारा फ्लिप स्टेट में आ जाता है, राइट। सो दे वर्क लाइक दिस, दे वर्क लाइक दिस। कैसे, इसको देखो, हाउ डू दे लुक लाइक। होता क्या है, लेट्स से कि भाई हमारे पास ये एक पर्टिकुलर सेल है, दिस इज अ कैरियर प्रोटीन, सो आई एम गोइंग टू लेबल दिस फॉर यू, दिस इज अ व्हाट, दिस इज अ कैरियर प्रोटीन, राइट हियर। सेल के बाहर कुछ पार्टिकल्स हैं जो लो कंसेंट्रेशन के अंदर है, सेल के अंदर लेट्स से भाई कुछ पार्टिकल्स हैं जो हाई कंसेंट्रेशन के अंदर है। अगर हम लोग, अगर if you would just take this particular part out, this particular part would look something like this। कि देखो, इनिशियली हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे कैरियर प्रोटीन्स लगे हुए हैं, which are like gates। ठीक है, so this is the outside of the cell, this is the inside of the cell। Make sense? यहां तक बात समझ में आ रही है? चलो, ओके, गुड इनफ, सही। अब हमने क्या देखा कि भाई सेल के बाहर जो पार्टिकल्स हैं वो लो कंसेंट्रेशन के अंदर है, सेल के अंदर देर आर पार्टिकल्स इन अ हायर कंसेंट्रेशन, राइट। So low concentration of particles right here, high concentration of particles right here. Now what happens is हमें जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी चाहिए होती है ना, वो इन कैरियर प्रोटीन्स को ओपन अप करवाने के लिए चाहिए होती है। गाइस बस, I'm honestly going to remove you guys right now। So अब अगर हम इसको एनर्जी सप्लाई करते हैं, सो व्हाट हैपेंस इज ये जो हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स होते हैं ना, दे ओपन अप, दे ओपन अप एंड दे बिकम समथिंग लाइक दिस, राइट। सो दे गोइंग टू ओपन अप एंड दे गोइंग टू बिकम समथिंग लाइक दिस। अब देखो, पहले वो किधर क्लोज थे, बाहर की तरफ, अब ये किधर क्लोज हो जाएंगे, अंदर की तरफ। अब हमारे पास अगेन देर आर स्टिल लेस पार्टिकल्स ऑन द आउटसाइड, देर आर मोर पार्टिकल्स ऑन द इनसाइड।
right? So low concentration right here, high concentration right here. Make sense? Besides, besides, uh, what we call as ओपनिंग अप, इनके पास एक एबिलिटी होती है कि जिस जगह के ऊपर पार्टिकल्स लो कंसेंट्रेशन के अंदर हो ना, वो उन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करें अपनी तरफ, राइट? तो अब क्या हुआ, ये इनमें से एक पार्टिकल इसने यहाँ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, दिस पार्टिकल इट मूव्ड राइट इन. नाउ when the supply of energy is going to stop, when the supply of energy is going to stop, पहले ये फ्लिप स्टेट में था, फिर उससे अपनी ये फ्लॉप स्टेट में गया, अभी दोबारा कौन सी वाली स्टेट में आ जाएगा, फ्लिप स्टेट के अंदर. इसको देखो. नाउ व्हाट्स गोना हैपन नाउ इज कि ये दोबारा ऐसे हो जाएंगे, राइट, लाइक दिस. अब ऑन द आउटसाइड अगेन, अब जो मेरे पास पार्टिकल्स है ना, वो अभी भी लो कंसेंट्रेशन के अंदर है. अब इनमें से एक पार्टिकल यहाँ अट्रैक्ट हो गया था ना, नाउ दिस पार्टिकल कैन नॉट गो आउट क्योंकि ये तो बंद हो चुका है. On the inside of the cell, on the inside of the cell, the particles were still in a higher concentration. The particles were still in a higher concentration. अब ये पार्टिकल क्या करेगा, दिस पार्टिकल नाउ बिकॉज काइनेटिक एनर्जी तो है ना इसके अंदर, it cannot go out, but it can move towards a region where the part concentration is higher. This is how active transport works. ठीक है? So we're out of time. In the next class, we're going to revise this again. ठीक है? And we're going to do a bit more. We're going to see the differences, and we'll then move on with the past topical past papers. I hope you guys have a good day.